Hello, dear students. In this class, we are going to discuss Gulmohar, NEP, and CF that is running in the session 2024 to 25. Okay. Class 8, Gulmohar shall be looking for this class. Okay, the first chapter of this class, that is what the knight and the ghost got in. The knight, the ghost got in, that is written by James Thurber. Okay, understanding the text we shall be looking, that is given in your book. So you can see that the page is given in your book. It says complete this table that connects the characters to their fear and reaction. Three things have been given here: character, fear, and reaction. So the first character is given narrator, fear, that is about ghost. What about the reaction of that? Okay, that you have to write here. Second, ghost means fear and reaction has been given. You have to write the character. Okay, third character, fourth character is given, and then after fear you have to write, and in the fourth, fear and reaction both you have to write. Okay, so see, police fear and police reaction we have to give here. See, as you can see on the screen, the first narrator is, that is already given, ghost is already given. What is the reaction to? He calls Herman. Okay, second character is asking, ghost is already given. Okay, and reaction is also given. So talking about reaction, ghost slams the door. Who slams the door? To the character is the Herman. Okay, third is character is given, fear you have to write, and reaction also given, decides to call the police. Who decides to call the police? If you will read the chapter, you will be able to know that the character mother, okay, the narrator's mother, who decided to call the police. Fourth character is given, that is what? Police. Fear is you have to write here, and reaction also you have to write here. The police grandfather and then run away. पुलिस जो थे, कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर से उनको फियर था, क्योंकि वो शूट कर रहे थे भाई, वो आर्मी में थे, और इस वजह से उनका रिएक्शन क्या था, वो भाग गए वहाँ से. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट था वो हमने अभी कंप्लीट किया स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर. Answer the following questions. Question 1, it says, what made the narrator realize that the noises were being made by a ghost and not a burglar? So क्या थी चीज़ें, तो देखते हैं. When the steps started up to the stairs, the narrator could see no one on the staircase, but still could hear the heavy step. ठीक है, क्या चीज़ थी जो नाइटर को रियलाइज़ की थी? जो भी नॉइजेस थी, जो शोर हो रहा था, वो एक घोस्ट की थी, ना कि एक किसी बर्गल की थी, मतलब किसी चोर की थी. ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि वो जो आवाज़ थी, ही कुड हियर द स्टेप्स ऑफ द साउंड ऑफ द स्टेप, बट ही कुड नॉट सी एनीबॉडी. तो उसको लगा कि वो घोस्ट है. दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज घोस्ट. इस वजह से उसको लगा कि वो सुन तो सकता है, बट वो किसी को देख रही, कुड नॉट सी एनीवन. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ही कुड नॉट सी एनीवन, तो इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ देयर वॉज अ घोस्ट इन द हाउस, व्हाट इज वॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द होलोबो? देखिए, Hulebo, just wait. Hulebo in the house. If not, then who was there? ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आंसर आप ये लिखेंगे कि नो, द घोस्ट वॉज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुलेबो इन द हाउस. इट इन माई ओपिनियन, जैसे आपका पूछा ना, इफ़ नॉट देन हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल, तो आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है. मुझे जो सही लगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप अपने ओपिनियन को यहाँ पे लिखिए. इन माई ओपिनियन, मोस्ट ऑफ द नॉइजेज एंड कन्फ्यूजन्स वर क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द पुलिस मैन एंड द मीटिंग विद द ग्रैंडफादर. आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बच्चों आप ये देखेंगे कि इनकी जो मीटिंग होती है ना, ग्रैंडफादर और पुलिस की, तो ये मीटिंग ही ऐसी होती है जिसमें ढेर सारे हल्ला शोर शराबा ये सारी चीज़ें होती है. तो इसको ये बोल रहा है ना कि होला, वो क्या रीज़न था उन चीज़ों का? तो क्या घोस्ट वॉज ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग और एनी अदर एक्टिविटी? तो मेरे ख्याल से तो जो जो शोर शराबा था, उनका जो रिपोर्टर था, जो पुलिसमैन थे, इन लोगों की वजह से ज़्यादा जो शोर शराबा जो था वो था. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. And in terms of question number 3, it says, sometimes unexpected behavior can create a lot of humor. Give two such examples of unexpected behavior of the policeman. Let us see. The first behavior you will find in your text, that the police who wrecked the house in their search for the burglar. Second is, they fell over each other trying to run away from an
ओल्ड मैन लाइक ग्रैंडफादर। तो ये जो दो सिचुएशन थी ना, एक ये ह्यूमर ह्यूमर पैदा करती है, आपको हंसी आती है इन दो सिचुएशन को देख के। क्वेश्चन नंबर 4, विल सी द हाउस एंड गो बैक टू यूरिया। पैराग्राफ नंबर 9 में आप देखेंगे, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट बाई मिसेस बॉडवेल टेल अस अबाउट हर नेबर्स। देखिए, ये यहाँ पे मिस्टर होगा, मिसेस नहीं होगा, अपनी बुक में चेक करिएगा बेटा, ठीक है। ये चेक करिएगा। और ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो उनके नेबर के बारे में क्या बताता है, क्योंकि जो बॉडवेल थे उनके नेबर थे ना, तो वो जो जूता फेंकती है उनके विंडो पे, ये जो चीज़ें थी आप अपने टेक्स्ट में पाएंगे। अच्छा, इफ़ यू वांट टू गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर यू कैन सजेस्ट मी, इफ़ यू विल आस्क मी टू हैव द एक्सप्लेनेशन आई विल अपलोड इट। तो वो जूता फेंकती है और जिससे कि वो जो मिस्टर बॉडवेल हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको रह रह के दौरे आते हैं, तो इससे वो काफ़ी डर जाते हैं कि किस तरह का, मतलब इनकी बातों से लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी जो उनके नेबर है वो अक्सर क्या करते थे। आंसर में देखते हैं, पूछ रहा है कि ये क्या बताता है इनके बारे में। तो देखिए, इट tells that this was probably not the first time that narrator's family had disturbed them. Being neighbors of the Thurber family must have been difficult for the Bordwells। तो बताता है कि ऐसा इससे पहले भी शायद उन लोगों ने किया होगा, और नेबर बने रहना उनकी फैमिली के साथ थोड़ा सा मुश्किल है ना, कि वो हमेशा से ही इस तरह से डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा करते होंगे, इस वजह से ऐसी बातें जो है वो कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका बी जो है वो देखते हैं, सेम क्वेश्चन का पार्ट बी। हाउ डू यू थिंक द Bordwells feel after this moment? So they probably feel angry and very irritated with the Thurbers। सी देखते हैं, डू यू थिंक द वे the narrator's mother communicated with the neighbors was clever or practical? Had there been real burglar in the house? Why or why not? देखिए, इस क्वेश्चन में आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, तो आपको जो भी लगता है वो अपना आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कम्युनिकेशन करने का ये एक अच्छा भी तरीका था, क्या जो उनकी माता जी थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी, या एक यही प्रैक्टिकल तरीका था कि तब वो उनको बता सकें। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उस घर में वाकई में कोई चोर घुस आया था, और अगर आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिकेशन का क्या तरीका है, आप उसका आंसर अपने मन से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देयर वॉज 2 or 3 ऑफ देम, मदर सेड, ऊइंग एंड कैरिंग ऑन द स्लैमिंग डोर। कैरिंग ऑन एंड स्लैमिंग डोर पैराग्राफ नंबर 12 में देखता है, इसका पार्ट 1 है, हाउ डज द नैरेटर्स मदर अकाउंट ऑफ द नॉइसेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द नैरेटर हर्ड। तो सबसे पहले माताजी के बारे में पूछ रहा है कि द नैरेटर्स हर्ड नॉइसेस ऑफ समवन वॉकिंग अराउंड द डाइनिंग रूम टेबल एंड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। ये तो नैरेटर ने सुना। मदर के बारे में कह रहा है कि मदर हर्ड हरमन एंड द नैरेटर स्लैमिंग डोर्स बट नो वन वॉज ऊपिंग। ठीक है, दैट वॉज एन एग्जेजरेशन। जैसे मदर ने ऐसा कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के मदर ने कहा। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मदर ने क्या बोला कि देयर वर 2 or 3 ऑफ देम, मदर से ऊपिंग एंड कैरिंग और स्लैमिंग द डोर। तो डोर किसने बंद किया भाई? डोर तो उन बच्चों ने बंद किया, नैरेटर उसके भाई ने बंद किया, मदर ने वो सुना। ऊपिंग जैसा कोई वर्ड नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ये बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कैन यू टेल व्हाट मिस्टेक हिज मदर वॉज मेकिंग हियर। तो मदर थॉट द डोर्स वर स्लैम्ड बाई बर्गलर्स बट इन रियलिटी इट वॉज हर सन्स हु हैड डन सो। ठीक है, ये मिस्टेक था। व्हाट डू यू थिंक वॉज द पुलिसमैन्स ओपिनियन ऑन द मैटर? वाई डिड दे थिंक सो। देखिए, पुलिसमैन क्या सोचते हैं भाई, तो द पुलिसमैन फाउंड नो बर्गल इन द हाउस और एनी साइन और फोर्स ऑफ एंट्री। ठीक है, घर में घुसने की कोई भी साइन उनको नहीं मिली, उनको कोई चोर नहीं मिला। दे प्रोबेबली थॉट दैट मदर हैड मेड अ मिस्टेक। उनको लगता है कि शायद उसने कोई मिस्टेक किया हो, एंड वॉज इमेजिन थिंग्स आउट ऑफ फियर। डर के मारे ऐसा उसने इमेजिन कर लिया होगा। ये इनकी सोच थी पुलिस वालों की। क्वेश्चन नंबर 6, it was true that a pet Genia pig we once had would never sleep anywhere except on the zither. But I should, ये आई है भाई, but I should never have said so। पैराग्राफ 13 में मिलेगा, आप इसको देखिए। Why does the narrator say that he shouldn't have said the truth? ठीक है, Why does the narrator say that he shouldn't have said the truth? ऐसा क्यों कहा नैरेटर ने? तो द नैरेटर
says that he shouldn't have said the truth, that बिकॉज द ट्रूथ तो साउंडेड अनरीजनेबल एंड फुलिश, क्योंकि जो सच्चाई थी ना उसमें कुछ था ही नहीं, वो बेवकूफ़ाना टाइप का सच्चाई थी भाई। कह रहे हैं कि वन और मोर एग्जाम्पल फॉर द टेक्स्ट वे आर सेइंग दैट द ट्रूथ डिड नॉट हैव द नाइट। और एग्जाम्पल मांग रहा है इसको पुख्ता करने के लिए भाई। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बुक में। आप ये सेम टू सेम बुक की लाइन है, टेक्स्ट है आपकी। आई डिसाइडेड टू बी फ्रैंक विद हिम, वी हैड गोस। देखिए सब बुक में मिलेगा आपको। आई सेड ही गेज्ड एट मी एट अ लॉन्ग टाइम्स एंड इफ आई वर अ स्लॉट मशीन इन टू विच ही हैड विदाउट रिजल्ट ड्रॉपिंग अ निकल। ठीक है, उसने ऐसा मुझे देखा जब भी मैंने ऐसा वी हैड गोस। तो ये जो आंसर था ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को। 7 देखते हैं। जस्ट वॉट ही टेल जस्ट वॉट द हेल इज़ द रियल लो डाउन हियर। बट पैराग्राफ 13 में ये लाइन मिलेगा आपको। वॉट वाई जस्ट द रिपोर्टर आस्क वॉट द रियल लो डाउन। ठीक है, ये रिपोर्टर की स्पीच है कि उसने क्यों ऐसा उसने कहा। तो आप ये देखिए, द रिपोर्टर आस्क्स वॉट द रियल लो डाउन इज़ बिकॉज ही इज़ प्रोबेबली कन्फ्यूज्ड अबाउट वॉट रियली हैपन इन द हाउस। वो कन्फ्यूज थे। ठीक है, द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी साइन of a burglary or a break-in, and the events that followed after the arrival of the policeman was so noisy and disorderly, grandfather letting off a gun, for example, that the reporter could not understand what was really happening। तो ये सारी चीज़ें जो हुल है वो तो इनका। Is there anyone else who has the same question in mind? Yes, एक और भी था जो कि पुलिस वाला था। ठीक है, माइट हैव द सेम क्वेश्चन इन हिज माइंड, ही वॉज इक्वली कन्फ्यूज अबाउट द फैमिली गिवन द बिहेवियर ऑफ मदर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द रिपोर्टर कंक्लूड्स फ्रॉम द नैरेटर्स फ्रैंक आंसर। तो द रिपोर्टर माइट हैव थॉट दैट द नैरेटर वॉज insane crazy as the rest of the family। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ ऑल देम क्रॉप्स टायरी hooting around the house last night, he demanded। paragraph 18, was grandfather aware that the men in his attic were policemen and not deserted। तो क्वेश्चन नंबर ए का देखते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द ग्रैंडफादर वॉज अवेयर दैट the men in his attic were policemen and not deserted, because the next morning he asked the narrator and Herman why the policemen were terry-hooting round the house last night। तो ये चीज़ें आपको बताती है। ठीक है, बी देखते हैं। if he was aware then why did he pretend that they were deserted and attacked them। so grandfather probably pretended that they were deserted and attacked them because his sleeping was disturbed and he wanted the policeman not to stop making a noise or leave the house। देखिए क्या तमाशा है भाई, यही तो ह्यूमर है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट ग्रैंडफादर्स कैरेक्टर। सो ग्रैंडफादर सीम टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन who is clever enough to fool others, taking advantage of his age। he also seems to be short-tempered and a very good actor, the way he fooled the policeman and the narrator। ठीक है, इस तरह से उसने किया। अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट पूछ रहा है कि समटाइम्स ह्यूमर डज नॉट नीड टू बी explained or pointed out, it becomes apparent from the action of the character। read the lines from the text and match to the reason and why they are funny। तो ये लाइन्स आप पढ़िए और आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, आपकी बुक में दिया, आप ये पढ़ लीजिए, मैं आंसर आपको बता देती हूँ। देखिए पहला का जो आंसर है वो 3rd है, बी जो है वो 4th, सी पहला है और डी जो है वो 2nd है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप फिर यहाँ पे ये पढ़िएगा ना कि ये जो दो क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा द स्टोरी इज फिल्ड विद सच डीप एंड ऑब्जर्वेशन, फाइंड एज मेनी एज यू कैन। किस तरह का ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है भाई, तो आप ये देखिए कि ह्यूमर कह रहे हैं ना कि द नाइट द घोस्ट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीप एंड कॉमेडी और ड्राई ह्यूमर। डीप एंड कॉमेडी और ड्राई ह्यूमर, तो कुछ ह्यूमर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको ये ह्यूमर जो आपकी बुक में है यहाँ पे फाइंड आउट करके मैंने दे रखे हैं, तो आप ये उसके आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ए बी और सी, ये आपकी बुक में कुछ लाइंस हैं जो आपको डीप एंड कॉमेडी के बारे में बताएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि ग्रामर यूसेज में दिस पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर वाज एन एरर इन ईच लाइन, अंडरलाइन द एरर एंड करेक्ट द टेंस। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप यहाँ देखिए। यस, सो जहाँ जो भी एरर है मैंने वहाँ पे इसको ऑलरेडी कट कर दिया है, और जो भी करेक्शन है इसको यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप ये करेक्शन देखिए और एरर को कट करिए, ठीक है। पैराग्राफ आप पढ़िए, वीडियो लंबी होगी। तो ये तो आपका एरर था, ठीक है। और आप ऐसे रखिए कि आपका पैराग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये देखिए, ये जो वर्ब्स दिए हुए ब्रैकेट में, इसके करेक्ट फॉर्म्स आपको लिखने हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ का जो इसका आंसर है, क्या बेटा, आई विल टॉक यू। तो इसका जो आंसर है ये देखिए, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक विल बी चेंजिंग, आर ब्रेकिंग विल हैव मास्टर्ड, कॉन्टिन्यूस विल डेवलप, विल हैव बिकम, और 8th आई एम गोइंग टू शो, 9th है विल थ्रो। फिर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है सी जो है वो बेटा, सी क्वेश्चन ग्रामर फन पूछ रहा है कि इमेजिन यू हैव गॉन अ हॉलीडे टू अ डिफरेंट सिटी, राइट डाउन 5 थिंग यू हैव वुड डू देयर, देन शेयर योर प्लान विद योर पेरेंट्स। देखिए, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिए। मैंने यहाँ लिख दिया कि आंसर विल वेरी। और वर्ड्स इन यूज़ में पूछ रहा है, वर्ड्स इन यूज़ में देखें, यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच ऑफ दिस वर्ड्स बट विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दैट दे कैरी इन द स्टोरी। सो ये जो वर्ड्स है ना, शू, क्वार्टर, फेंट एंड शोल्डर, रिपोर्ट, ठीक है, इसके जो आंसर्स है मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, आप ये देखिए, ठीक है। शू का जो है वो द ब्लैक स्मिथ वॉज कॉल्ड टू शू द हॉर्सेस। सेकेंड है क्वार्टर, मदर आस्क्ड टू मी टू क्वार्टर द एप्पल्स। फेंट, ही फेल टू द ग्राउंड इन अ डेड फेंट फ्रॉम द हीट। फिफ्थ है shoulder the class perfect, had to shoulders the responsibility of maintaining discipline in the class. And the last is the official report on the train accident was submitted a week later, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों, एक वोकैबुलरी एक्टिविटी है यहाँ पे कि पेयर विद द योर पार्टनर एंड राइट द साउंड दैट यू फील बेस्ट सूट दिस सिचुएशन। तो ये सिचुएशंस है। पहला है द हॉर्स ट्रॉटिंग ऑन a cobbled, एक मिनट बेटा, cobbled stair dishes falling on the floor and the car's horn। तो ये देखिए, now think two more situation। तो यहाँ चौथा और पांचवा मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, मेरा बेबी चेक किया है तो आई एम सम लिटिल हरी। तो वोकैबुलरी एक्टिविटी में देखिए, पहला जो है वो क्लिप हो सकता है, क्लॉप हो सकता है, क्लैटर और क्रश हो सकता है, थर्ड जो है वो हॉन्क, और चौथा और पांचवा में आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर पंक्चुएशन है बेटा, ये देखिए पंक्चुएशन आपकी बुक में दे रखा है। पोसेसिव एपोस्ट्रोफी आर यूज टू यूज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हरमनसी, तो एपोस्ट्रोफी के बारे में मैंने एक क्लास ले रखी है, आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आऊँगी, इंसर्ट एपोस्ट्रोफी व्हेन दिस रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। तो ये देखिए, ये आपका सिचुएशन है, कहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी यूज़ करना। और फिर उसके बाद एक स्पीच प्रैक्टिस भी है आपके बुक में। तो ये देखिए, स्पीच प्रैक्टिस इस पेज पे होगा। यस, ये स्पीच प्रैक्टिस इन पेयर्स, रीड द सेंटेंस एंड राइट एफ फॉर फॉर्मल, इन फॉर इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये है बेटा, पहला इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल, तीसरा इनफॉर्मल, चौथा इनफॉर्मल, पांचवा फॉर्मल। और फिर राइटिंग, जो राइटिंग स्किल है, वो राइटिंग स्किल आप खुद ही पढ़िए और इसका आंसर भी आप खुद से देने की कोशिश करिए। तो मैंने कोशिश करी है कि ये जो चैप्टर है, आपको जो भी इसके आंसर है मैंने आपको दे रखे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। देखिए, पंक्चुएशन का बच्चों मेरे से छूट गया था, ये है पंक्चुएशन का आंसर। तो आप ये देखिएगा, डेंटिस्ट होगा। छठवें में आपको कोई सेकंड में नो पंक्चुएशन, अनिल्स हो जाएगा, ठीक है। जोहर्स 6 में फिर कुछ नहीं, और 7th में किड्स, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1, द नाइट द घोस्ट गॉट इन का सॉल्यूशंस फॉर 2024 to 2025, ठीक है बच्चों।
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, और आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।